تو کعبہ شہید ہو گیا. زمین پر سوائے بنیادوں کے اور کوئی نشان نہیں تھا. حجر اسود کو فرشتوں نے اٹھا کر کے ابو قبیس پہاڑی کے اندر چھپا دیا تھا. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کرنی چاہی تو رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے پروردگار میں کعبے کی تعمیر کہاں سے کروں؟ حضرات گرامی تو غیب سے ایک بادل آتا ہے اور آ کر کے جہاں کعبے کی حدود تھی وہاں پر سایہ فگن ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہاں کعبہ تعمیر کرنا ہے. پروردگار عالم نے اس بادل کو یہ انعام عطا فرمایا کہ بادل کو حکم دیا کہ اے بادل جیسے تو کعبے کے سائے میں سایہ فگن ہو گیا ہے ایسے ہی تجھے یہ انعام ملتا ہے کہ جب میرا محبوب مکے کی سرزمین پر آئے تو جہاں جہاں میرا محبوب جائے تو اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہوا جانا, تو اس کے اوپر سایہ کرتے ہوئے جانا. وہ بادل کا ٹکڑا مدینے والے مصطفیٰ پہ سایہ کرتا ہوا چلتا تھا. حضرات اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کعبے کی تعمیر کے لیے پروردگار عالم جو جگہ تھی اس جگہ کو بتانے کے لیے پروردگار عالم نے ایک مکڑی کو پیدا فرمایا اور وہ مکڑی جہاں جہاں جاتی تھی وہاں پر روشنی ہوتی تھی. کعبے کی بنیادیں اس کے ذریعے پتہ چل گئیں اور مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا, حکم دیا کہ جب میرا محبوب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو تشریف لے جائے اور جب وہ غار ثور کے اندر بیٹھے تو مکڑی کو حکم دیا تھا کہ تجھے یہ انعام دیا جاتا ہے کہ تو میرے محبوب کے لیے غار کے دروازے پہ جالا تان دینا, جالا بن دینا. حضرات گرامی ایک روایت میں ہے کہ ایک بجلی چمکدار کڑکدار بجلی آئی اور آ کر کے اس جگہ پر گری جہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہے اور اس جگہ کو چمکدار بنا دیا جہاں جہاں کعبے کی بنیادیں تھیں. حضرات گرامی المختصر یہ کہ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا لے کر کے آتے, اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر کے آتے. کعبے کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر لگے ہیں, 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں ہیں. کوہ جودی کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے, کوہ لبنان کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے, کوہ ہرا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے, کوہ طور سینا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے, کوہ ہرا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں ہے. 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگے ہیں. یہ 5 پہاڑوں ہی کے پتھر کعبے کی تعمیر میں کیوں لگے؟ پہاڑ تو دنیا میں اور بھی ہیں, بڑے بڑے پہاڑ دنیا میں ہیں, لیکن انہی 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں کیوں لگے؟ تو سنو, ان 5 پہاڑوں کو اللہ کے مقدس بندوں سے نسبت ہے, اللہ کے مقدس نیک بندوں سے نسبت ہے, اس لیے ان 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگے. جیسے کہ کوہ ہرا کو نسبت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہے جو لنکا میں پہاڑ ہے. حضرت آدم علیہ السلام اسی پہاڑ کے اوپر تشریف لائے تھے اور کوہ سینا کو بھی نسبت ہے, کوہ جودی کو بھی نسبت پیغمبر سے ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی سے لگی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ جو ملی تھی وہ طور سینا پہ جا کر کے ملی تھی. کوہ طور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اس کو نسبت ہے. اس لیے ان 5 پہاڑوں کو اللہ کے مقدس نیک بندوں سے نسبت ہے. اس لیے ان 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں لگائے گئے. کوہ سینا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں, کوہ زینا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں, کوہ جودی کا پتھر کعبے کی تعمیر میں, کوہ ہرا کا پتھر کعبے کی تعمیر میں, کوہ لبنان کا پتھر کعبے کی تعمیر میں. 5 پہاڑوں کے پتھر کعبے کی تعمیر میں کیوں لگے؟ پہاڑ تو دنیا میں اور بھی ہیں, انہی 5 پہاڑوں کے پتھروں کو کعبے کی تعمیر میں کیوں لگایا گیا؟ تو سنو پیارے مسلمانوں, خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے کے بعد میں پروردگار عالم نے اس امت کے اوپر جو 5 وقت کی نماز فرض کی ہے, پروردگار عالم نے 5 وقت کی نماز تو مسلمانوں کے اوپر فرض کی ہے. جو بھی مسلمان خشوع اور خضوع کے ساتھ میں 5 وقت کی نماز پڑھے گا پروردگار عالم اس کو 5 پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا.
इसलिए 5 पहाड़ों के पत्थर काबे की तामीर में लगे। इस्लाम के अरकान भी 5 हैं, नमाजें भी 5 हैं, काबे की तामीर में पत्थर भी 5 लगे हैं, 5 पहाड़ों के पत्थर लगे हैं। अल्लाह अकबर। जब काबे की तामीर मुकम्मल हो जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पे खड़े होते हैं, वो पत्थर ऊपर उड़ता हुआ चला जाता है। हजरात, उसी पत्थर को आज मकाम इब्राहिम के नाम से याद किया जाता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद के अंदर आया है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। आज हाजी हज करने के लिए जाते हैं, काबे के तवाफ से जब फारिग होते हैं तो मकाम इब्राहिम के पास में आकर के 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। ये वही पत्थर है जिसके ऊपर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर की थी। अब जब काबा तामीर हो गया, जब काबा बन गया, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है, मेरे परवरदिगार ये तोहफा हमारी जानिब से कबूल फरमा और अपने उस पैगंबर को हमारी नस्ल में अता फरमा दे। दुआ की, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ऐ मेरे परवरदिगार इस दुआ को कबूल फरमा ले, बेशक तू सुनने और जानने वाला है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब काबे की तामीर मुकम्मल कर दी, अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, इब्राहिम अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में ऐलान कर दो कि वो अब इस घर के तवाफ के लिए आएं। लोगों में ऐलान कर दो कि वो अब काबे के तवाफ के लिए आएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरे परवरदिगार मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम आवाज देना तेरा काम है, उसको पूरी दुनिया में पहुंचाना हमारा काम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी पत्थर पे खड़े होते हैं, वो पत्थर बुलंद होता चला जाता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ की मिस्ल बुलंद हो जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, ऐ लोगों अल्लाह का हुक्म है हज करने के लिए आओ, ऐ लोगों अल्लाह का हुक्म है काबे के तवाफ के लिए आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये आवाज दी, हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आवाज को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया और पूरी दुनिया के लोगों ने इस आवाज को सुना। जो माँ के शिकम में थे वो माँ के शिकम से आवाज दे रहे थे, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। जो बाप की सुल्ब में थे वो बाप की सुल्बों से आवाज दे रहे थे, लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका। हजरात गिरामी, आज का बदअकीदा हमसे ये सवाल करता है कि तुम यहाँ से हिंदुस्तान से खड़े हो करके नबी पे सलाम पढ़ते हो, क्या तुम्हारे नबी सलाम सुनते हैं? हजरात गिरामी, आज तो समझाने के लिए बहुत सारे आलात मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि जब कहीं पर लाइव टेलीकास्ट होता है, कहीं पर लाइव प्रोग्राम चलता है, तो चलता वो प्रोग्राम बरेली में है और उसे सुना पूरी दुनिया में जाता है। वो प्रोग्राम चलता तो पीलीभीत में है, लेकिन उस प्रोग्राम को पूरी दुनिया में लाइव देखा जाता है। कैसे यहाँ पीलीभीत की आवाज पूरी दुनिया में पहुंच रही है। आज इन आलात के ऊपर तो इंसान का अकीदा है, वो परवरदिगारे आलम जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, जिसने इन आलात को पैदा फरमाया, जिसने इंसान को ये दिमाग अता फरमाया कि वो ऐसी चीजें ईजाद कर दे, उस रब तबारक व तआला की जात पे भरोसा नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आवाज लगा रहे हैं, आपकी आवाज को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गुलाम हिंदुस्तान से खड़े होकर के मदीने वाले मुस्तफा पे सलाम पढ़े तो परवरदिगार आलम हमारे सलाम को फरिश्तों के जरिए मदीने में क्यों नहीं पहुंचा देगा? यकीनन हमारे सलाम को मदीना मुनव्वरा पहुंचाया जाता है। तभी तो मेरा इमाम पुकार के कहता है, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरा कोई भी उम्मती जब मुझ पर रस्मी तौर पे दुरूद पाक पढ़ता है, उसके दुरूद को फरिश्ते मेरी बारगाह में लेकर के आते हैं। और जब मेरा आशिक, जब मेरा दीवाना, जब मुझसे सच्ची मोहब्बत करने वाला सच्चे दिल से मुझ पे दुरूद पढ़ता है, उसके दुरूद को मैं खुद अपने कानों से समात करता हूँ, मैं उसके दुरूद को खुद अपने मुकद्दस कानों से सुनता हूँ। मेरा इमाम पुकार के कहता है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम।
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا میں میرا رب پہنچا سکتا ہے، وہ رب قادر مطلق ہے، وہ رب مالک علی الاطلاق ہے، وہ رب احکم الحاکمین ہے، جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ جو لوگ ماں کے شکم میں تھے وہ ماں کے شکم سے آواز دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اور جو باپ کی صلبوں میں تھے وہ باپ کی صلبوں سے آواز دیتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ حج کرنے جائے گا، جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا وہ 2 مرتبہ حج کرنے جائے گا، جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا ہے وہ 3 مرتبہ حج کرنے کے لیے جائے گا۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام۔ مدینے والے مصطفیٰ کا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت کے طور پہ آیا، پھر حضرت ابراہیم کی پیشانی میں آیا، اور حضرت ابراہیم کی پیشانی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، پھر یہی نور امانت کے طور پہ پیشانیوں سے منتقل ہوتا ہوا، اصلاب طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا، ارحام طیبہ سے منتقل ہوتا ہوا، مکے کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت عبد المطلب کے مکان میں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے یہی نور دنیا میں تشریف لایا۔ میرا امام پکار کے کہتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ حضرات حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی 2 بیبیاں، ایک بی بی حضرت حاجرہ اور ایک بی بی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت حاجرہ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی پیشانی میں جو مدینے والے مصطفیٰ کا نور رکھا ہوا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور میرے آقا کے بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے۔ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے بعد مدینے والے مصطفیٰ ہی پیغمبر ہیں، اور مدینے والے مصطفیٰ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ مدینے والے مصطفیٰ ہی کے صدقے میں تمام انبیاء کرام کو پیدا کیا گیا، تمام رسولان اعظام کو پیدا کیا گیا، تمام دنیا کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ صدقہ ہے مدینے والے مصطفیٰ کا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی عادت کریمانہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں آیا، بہت دیر انتظار کرتے رہے، پھر مہمان کی تلاش میں آپ نکلے تو ایک شخص آپ کو ملا، بوڑھا شخص تھا، اس کو آپ لے کر کے آئے، ابراہیم علیہ السلام دسترخوان پہ بٹھایا، اور جب بات چیت اس سے ہوئی تو پتا چلا کہ وہ پروردگار عالم کو نہیں مانتا ہے، وہ دین ابراہیمی پہ قائم نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے بہت دعوت دی کہ تو دین ابراہیمی میں داخل ہو جا، اس نے قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں پہلے ہی سے جس دین پر ہوں اسی دین پہ قائم رہوں گا، کھانا کھلانا ہو تو کھلاؤ، نہیں کھلانا ہو تو میں جاتا ہوں۔ اس نے یہ کہا اور ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ چلا گیا، ابراہیم علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ جو دین ابراہیمی میں نہیں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان پہ کھانا کیوں کھائے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اللہ اکبر! غیب سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے، ابراہیم
तूने उसे एक बार खाना नहीं खिलाया और हम उसको 70 साल के करीब खाना खिला रहे हैं। अल्लाह अकबर, जाओ और उसको लेकर के आओ, उसको खाना खिलाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी तलाश में निकले, उसको लेकर के आए, और जब लेकर के आए तो पूरा वाकया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनाया। उस शख्स ने कहा कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूँ कि जो रब मुझ पे इतना मेहरबान है, उस रब की मैं नाफरमानी करता हुआ नजर आ रहा हूँ। इब्राहीम, मुझे कलमा पढ़ाओ और अपने दीन में दाखिल कर लो। आज से मैं पुराना दीन छोड़ रहा हूँ और दीन इब्राहीमी में दाखिल हो रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको कलमा पढ़ाया और दीन इब्राहीमी में दाखिल कर लिया। तो पता चला मेहमान के लिए खाना खिलाने के लिए कितनी बड़ी फजीलत है। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेहमान आता है तो वो अपनी किस्मत का रिज्क साथ लेकर के आता है। पहले एक दौर था कि जब इंसान को फिक्र रहा करती थी, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। आज ये दौर है मेरे प्यारों कि ये शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। आज इंसान का हाल ये है कि मेरे घर आने वाला मेहमान चला जाए तब उसके बाद में मैं खाना खाऊं। पहले के मुसलमान थे जो सोचते थे कि कोई मेहमान आ जाए हमारे घर पर ताकि मैं उसके साथ बैठ कर के खाना खाऊं। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, अगर किसी इंसान को ये देखना है कि उसके घर में खैर बरकत है या नहीं है तो वो देख ले उसके घर में मेहमान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मेहमान का आना घर में खैर बरकत की दलील है। मेहमान का आना घर में खैर बरकत का सबूत है। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान के साथ खाना खाते थे और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब मेहमान किसी के घर पे आता है तो वो अपनी किस्मत का रिस्क साथ लेकर के आता है और मेहमान के सदक़े वसीले से अच्छी ग़िज़ाएं खाने को मिल जाती हैं, मेहमान के वसीले से अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। अगर मेहमान नहीं होता है तो इंसान जैसा चाहता है वैसा खाना बना के खा लेता है, और जब मेहमान आ जाता है तो इज्जत बचाने के लिए बेहतरीन खाने का इंतजाम करता है। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ पर कोई मेहमान नहीं आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमान की तलाश में निकले। आपने देखा कि कोई मेहमान नहीं मिल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने दो फरिश्तों को मेहमान बना करके भेज दिया। वो दोनों फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहते हैं, हम तुम्हारे मेहमान हैं, हमको अपने साथ लेकर के चलो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको लेकर के आते हैं, दस्तरखान पे बिठाते हैं, खाना लगाया जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भूख लगी थी, कई वक्त के भूखे थे, आप अपनी नजरें नीचे झुका करके खाना खा रहे थे। मेहमान खामोशी के साथ बैठे हुए थे। हजरते सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से देखा। हजरते सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से कहा, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आप खाना खा रहे हो और मेहमान देखो खाली बैठे हुए हैं, मेहमान खाना नहीं खा रहे हैं। हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नजर उठा के देखा, फरमाया कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? उन दोनों मेहमानों ने कहा, हम खाना खाने से पाक हैं। कहा, क्या तुम फरिश्ते हो? कहा, हाँ हम फरिश्ते हैं। कहा, क्या अल्लाह अकबर, आप फरिश्ते हो? कहा, हाँ फरिश्ते हैं, और हमें परवरदिगार आलम ने आपको खाना खिलाने के लिए भेजा है, क्योंकि रब तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा इब्राहीम तब तक खाना नहीं खाएगा जब तक उसके घर पर कोई मेहमान नहीं पहुंच जाएगा। ऐ फरिश्ते, तुम मेहमान बन करके जाओ और मेरे इब्राहीम को ये खुशखबरी सुना दो कि इब्राहीम के यहाँ पर एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम इसहाक होगा, और परवरदिगार आलम उसको मनसबे नबुव्वत पर फाइज फरमाएगा। हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दे की आड़ से ताज्जुब का इजहार किया कि मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा, जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मेरे शौहर के बाल सफेद पड़ चुके हैं। हजरत सारा ने जब ये ताज्जुब का इजहार किया तो फरिश्तों ने कहा, ऐ बीबी, आप इस बात पर ताज्जुब कर रही हैं कि आप दोनों बूढ़े हो चुके हो इसलिए आपके यहाँ पर बेटा पैदा होगा, इस बात पर ताज्जुब कर रही हो? वो रब तो कादिर मुतलक है, उसने इंसान को तब पैदा किया था जब इंसान का वजूद भी नहीं था। इसलिए हमको अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए, हमको अल्लाह की जात पर भरोसा रखना चाहिए, हमको अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए। राजी ब रजा रहने वालों के लिए परवरदिगार आलम बेहतरीन
बेहतरीन बदला अता फरमाता है, बेहतरीन इनाम अता फरमाता है। आज शादी के 2-3 साल हो जाएं और अगर भाई इंसान के यहाँ पर बच्चा ना हो तो वो बीवी को ताना मारना शुरू कर देते हैं, वो बीवियों को ताना देना शुरू कर देते हैं कि कैसी आई है, इसकी वजह से घर में कोई औलाद नहीं है, इसकी वजह से घर में कोई खुशखबरी की सुनाए, कोई खुशखबरी भी सुनने को नहीं मिल रही है। अल्लाह अकबर, 2-3 साल के बाद भी औरतों को ताना दिया जाना शुरू हो जाता है। याद रखो, परवरदिगार कुरान में इरशाद फरमाता है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, यहाँ बोले मन यशाओ इनासों व यहाँ बोले मन यशाओ ज़कूर। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता फरमा, बेटियां अता फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानो व इनासा, या अल्लाह उनको दोनों अता फरमाता है, बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। ये तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। बेटा देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, औलाद देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। इसलिए हमने उस रब की जात पर भरोसा रखना चाहिए, उस रब की जात पर तवक्कुल रखना चाहिए। और उस रब ने तब इंसान को पैदा किया था जब इंसान का वजूद भी नहीं था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा फरमाया। वो रब कादिर मुतलक है, वो रब चाहे तो बुढ़ापे में औलाद अता फरमा दे, वो रब चाहे तो जवानी में औलाद अता फरमा दे। इसलिए हमको उस रब की जात पर भरोसा रखना चाहिए, हमको उस रब की जात पर तवक्कुल रखना चाहिए, क्योंकि औलाद देना अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। उस रब की बारगाह में झुको, मस्जिदों में आओ, रो रो करके उस रब की बारगाह में दुआएं करो। वो रब तबारक व तआला तुम्हारे घर में खुशियां भर देगा। तुम उस रब की बारगाह में झुको तो सही, लेकिन तुमने डॉक्टरों की जात पे भरोसा रखा, तुमने नर्सों के कहने पे भरोसा रखा, तुमने आज दुनियावी मशीनों के ऊपर भरोसा रखा। उस रब की बारगाह में सर को नहीं झुकाया जिस रब ने इन डॉक्टरों को पैदा किया। उस रब की बारगाह में नहीं झुके जिस रब ने इन नर्सों को पैदा किया। उस रब की बारगाह में नहीं झुके जिस रब ने इंसान के अंदर ये दिमाग दिया कि वो ऐसी मशीनें ईजाद करे जिसके जरिए इंसान के पेट में क्या है वो बता दे। तमाम बीमारियां बताने वाली मशीन इंसान ने बनाई है। तो उस इंसान को जो दिमाग दिया है उस रब ने दिया है। उस रब की बारगाह में झुको जो अहकमुल हाकिमीन है। उस रब की बारगाह में झुको जो मालिक अलल इतलाक है। उस रब की बारगाह में झुको जो मुदब्बिर हकीकी है। उस रब की बारगाह में झुको जो अहकमुल हाकिमीन है। वो रब चाहे तो जर्रे को आफताब बना दे, वो रब चाहे तो कतरे को दरिया बना दे। वो वही रब है जो दोषे हवा को, जो गुबार को दोषे हवा पर मुकर्रर फरमाता है। वो रब है जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में महफूज रखा। वो मेरा रब है जिसने गारे सौर में अपने महबूब की हिफाजत फरमाई। वो मेरा परवरदिगार है जिसने आग के अंदर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा। वो मेरा परवरदिगार है जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। उस रब की जात पर भरोसा रखो, झुक जाओ उस रब की बारगाह में, आ जाओ अपने रब की बारगाह में, रो रो करके दुआएं करो। मेरे परवरदिगार हमसे जो गुनाह हुए हैं, मेरे मौला हमसे जो खताएं हुई हैं, मौला हम अपने खताओं की गुनाहों की माफी चाहते हैं। मेरे परवरदिगार आलम मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, मेरे मौला मेरी खताओं को माफ फरमा दे। वो रब अरहमुर राहिमीन है, मेरा रब गफूर रहीम है। मेरा रब तुम्हें बख्श देगा और मेरा रब तुमको नेक औलाद अता फरमा देगा। उस रब की बारगाह में झुको जो रब तमाम जहानों का परवरदिगार है। उस रब की बारगाह में झुको जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। परवरदिगार आलम की बारगाह में झुकोगे, मेरे रब की बारगाह में आकर के रो रो कर दुआएं मांगोगे, माफी मांगोगे अपने गुनाहों से, और अपना रब की बारगाह में झुक करके ये अर्ज करोगे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मेरे परवरदिगार हमको नेक औलाद अता फरमा दे। मेरा रब तुमको नेक औलाद अता फरमा दे। इसलिए अपने रब की बारगाह में झुको। मेहमान का आना बरकत की निशानी है। मेहमान जिस घर में आता है उस घर में अब खैर बरकत लेकर के आता है। मेहमान जिस घर में आता है वो खैर बरकत का सबब होता है। मौला अली शेर खुदा ने फरमाया, जिसको ये देखना हो कि मेरे घर में बरकत है या नहीं है, वो अपने घर में देख ले कि मेहमानों का आना जाना लगा हुआ है कि नहीं है। अगर मेहमानों का आना जाना है उसके यहाँ पर तो उसके घर में खैर बरकत है। मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत
اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. میرے بیان کرنے میں سبقت لسانی کی وجہ سے یا بتقاضۂ بشریت کوئی غلطی ہو گئی ہو، میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب